آپ سب کو میرے چینل خاموش سائے میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل خاموش سائے میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سلسلے وار ناول فلیٹ 704۔ قسط نمبر 4، پس منظر۔ وقاص 3 دن آئی سی یو میں رہا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کے جسم میں شدید پانی کی کمی تھی۔ ایسی ڈی ہائیڈریشن عام طور پر ریگستان یا کئی دن بند کمرے میں رہنے سے ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وقاص زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے لاپتہ تھا۔ اس کے جسم پر کوئی تشدد کا نشان نہیں تھا، کوئی انجیکشن مارک نہیں، کوئی زخم نہیں۔ پھر خون میں سوڈیم لیول خطرناک حد تک کیوں بڑھا ہوا تھا؟ میں چوتھے دن ہسپتال گیا۔ وقاص ہوش میں آ چکا تھا مگر بول نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا نفسیاتی شوق لگتا ہے، یادداشت جزوی طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ میں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ پہچان موجود تھی۔ میں جھکا اور دھیمی آواز میں کہا 704 میں کیا ہوا تھا؟ اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلکی سی کانپی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے صرف ایک لفظ کہا، گواہ۔ کون گواہ؟ اس نے نظریں ہٹا لی۔ ہونٹ خشک تھے۔ ہم اکیلے نہیں تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کس کے ساتھ تھے؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر وہی جملہ دہرایا، شادی ہو چکی ہے۔ نرس اندر آ گئی، بات وہیں رک گئی۔ اسی شام مجھے پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ انسپکٹر عدیل کیس دیکھ رہا تھا۔ 50 کے قریب عمر، سیدھا سا آدمی، غیر ضروری بات نہیں کرتا۔ اس نے فائل میری طرف سرکائی۔ آپ لوگ کہتے ہیں فلیٹ خالی تھا، لیکن ہمیں پرانی ریکارڈ فائل ملی ہے۔ میں نے فائل کھولی۔ فلیٹ 704 کا پہلا کرایہ دار 2018، نام مریم سہیل، پیشہ فری لانس گرافک ڈیزائنر، اسٹیٹس غیر شادی شدہ، مدت قیام 11 ماہ، کیس نوٹ، مبینہ خودکشی، باتھ روم میں پانی کے ٹپ میں موجود ڈوبی ہوئی پائی گئی۔ میں نے سر اٹھایا۔ خودکشی؟ عدیل نے کندھے اچکائے۔ کیس بند۔ کوئی مجرمانہ ثبوت نہیں ملا تھا۔ اور بعد میں اس کے بعد دوبارہ کرایہ پر گیا۔ پہلی فیملی 2 ماہ میں چلی گئی، دوسرا لڑکا 3 ہفتے میں۔ وجہ؟ عدیل نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ رات کی آوازیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ کیا مریم کے کیس میں کچھ عجیب تھا؟ عدیل چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پوسٹ مارٹم میں بھی ہائی سوڈیم لیول تھا، غیر معمولی حد تک۔ میرے ذہن میں فوراً نمک کا دائرہ آیا۔ کیا اس کے گھر میں نمک ملا تھا؟ عدیل نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں خاموش رہا۔ اس نے فائل سے ایک تصویر نکالی۔ باتھ روم کا فرش، ٹپ کے ارد گرد باریک نمک بکھرا ہوا تھا۔ پولیس نے اسے عام کچن نمک سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑ گئی۔ یہ خودکشی نہیں تھی، یہ پیٹرن تھا۔ میں سیدھا بلڈنگ واپس گیا۔ اس بار میں اکیلا نہیں تھا۔ ایک چھوٹا کیمرہ اپنے ساتھ لے گیا۔ رات 11 بجے۔ بلڈنگ کے باہر غیر معمولی خاموشی تھی۔ چوکیدار رشید موجود تھا، لیکن وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، 2018 میں یہاں کام کر رہے تھے؟ وہ چونکا۔ جی۔ مریم کو جانتے تھے؟ اس نے ہونٹ چاٹے، پھر آہستہ سے کہا، بہت کم نکلتی تھی۔ آخری مہینے میں اکثر رات کو کوئی آتا تھا۔ میرا دل تیز دھڑکا۔ کون؟ ایک آدمی، ہمیشہ سفید کپڑوں میں۔ چہرہ واضح نہیں دیکھا کبھی۔ سی سی ٹی وی؟ وہ نظریں جھکا گیا۔ تب بھی خراب تھے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا۔ یہ اتفاق نہیں تھا۔ میں لفٹ کی طرف بڑھا۔ اس بار میں نے خود بٹن دبایا۔ 7۔ لفٹ اوپر گئی۔ دروازہ کھلا۔ فلیٹ 704 کے سامنے پہنچ کر میں رکا۔ دروازہ سیل تھا۔ پولیس کی ٹیپ لگی ہوئی تھی، لیکن اندر سے پانی ٹپکنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ ٹپ ٹپ۔ میں جھکا۔
दरवाजे के नीचे से पानी की एक बारीक लकीर बाहर आ रही थी। मैंने फौरन अदील को कॉल की। पुलिस आई, सील तोड़ा गया, दरवाज़ा खोला गया। हाल खुश्क था, कोई पानी नहीं, लेकिन मास्टर बेडरूम के अंदर फर्श मुकम्मल गीला था। दरमियान में वही स्टील का तश्त और इसके अंदर इस बार एक और तस्वीर तैर रही थी, मरियम की। इसके माथे पर लिखा था गवाह और दीवार पर नमक से एक लफ्ज़ लिखा था अगला। इंस्पेक्टर अदील ने मेरी तरफ देखा। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई रस्म है, मैंने आहिस्ता से कहा, और हम पहले ही इसके अंदर आ चुके हैं। इसी लम्हे मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, नाम अननोन नंबर, पैगाम 11:30, इस बार अकेले मत आना, दूल्हा तैयार है। मेरी सांस रुक गई क्योंकि वक्त देखा तो 11:27 हो चुके थे। किस्त नंबर 5, दूल्हा। मैसेज आने के बाद मैंने फ़ौरन वक्त देखा, 11:27। इंस्पेक्टर अदील अभी फ्लैट के अंदर था। पुलिस फोटोग्राफी कर रही थी। नमक, दश्त, तस्वीर सब जब्त हो रहा था। मैंने मोबाइल जेब में रखा। किसी को मैसेज के बारे में नहीं बताया क्योंकि एक बात अब वाज़ेह हो चुकी थी। जिसको भी इस रस्म का इल्म होता वो अगला हदफ बन जाता था। अदील मेरे पास आया, आप कुछ छुपा रही हैं? मैंने सीधा जवाब दिया, नहीं। इसने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर बोला, हमें बिल्डिंग के चौकीदार को हिरासत में लेना पड़ेगा। रशीद? हाँ, इसका बयान बदल रहा है। हम नीचे आए। रशीद अपनी कुर्सी पर नहीं था। चाय का कप उल्टा पड़ा था। ज़मीन पर फैली चाय अभी गीली थी, यानी वो चंद मिनट पहले तक यहाँ था। पार्किंग में इसकी साइकिल मौजूद थी। मोबाइल स्विच ऑफ। अदील ने फ़ौरन टीम को अलर्ट किया। मैंने इस लम्हे मोबाइल निकाला, वही नंबर, एक और मैसेज, दूल्हा तैयार है, गवाह भी मौजूद है, सिर्फ काजी का इंतज़ार है। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने पहली बार अदील को सब कुछ बता दिया। कॉल, वक्त, मैसेज। वो खामोशी से सुनता रहा। आप पहले क्यों नहीं बोले? क्योंकि मुझे यकीन नहीं था ये सब हकीकी है या नहीं। अदील ने सख्त लहजे में कहा, ये बहुत मुनज़्ज़म लग रहा है, कोई खेल नहीं है। इसी वक्त एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर, बेसमेंट में कुछ मिला है। हम फ़ौरन बेसमेंट की तरफ गए। बिल्डिंग की बेसमेंट आमतौर पर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती थी। हर एक कोने में पड़ा पुराना स्टोर रूम था। बंद, जंग आलूद दरवाज़ा, ताला तोड़ा टूटा हुआ था। अंदर रोशनी कमज़ोर थी और फर्श पर नमक बिखरा हुआ था। बाकायदा गोल दायरा। दरमियान में एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर रस्सियाँ बंधी हुई थीं और कुर्सी के सामने दीवार पर स्याह मार्कर से लिखा था, कबूल है। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। अदील ने इर्द गिर्द देखा। ये किसी ने तैयार किया है, ये अचानक नहीं बना। फर्श पर पानी के निशानात भी थे, ऐसे जैसे कोई गीला जिस्म यहाँ से घसीटा गया हो। और फिर हमने कमरे के दूसरे कोने में रशीद को पाया। वो जिंदा था, लेकिन कुर्सी से बंधा हुआ, मुंह पर टेप, आंखें खुली हुई मगर खौफ से फैली हुई। हमने फौरन इसे खोला। टेप हटाते ही वो जोर जोर से सांस लेने लगा। अदील ने पूछा, किसने किया है ये? रशीद के होंठ कांप रहे थे। वो ऊपर वाला नहीं है। कौन? 704 वाला। वो यहाँ नहीं रहता। मेरा दिल रुक सा गया। कौन नहीं रहता? रशीद ने मुश्किल से कहा, फ्लैट खाली नहीं है। अदील ने सख्ती से पूछा, क्या मतलब? रशीद की आंखों में आंसू आ गए। वो लोग रहते हैं जो शादी करवाते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। कौन लोग? 4 या 5। हमेशा चेहरा ढका होता है। रात 11:30 पर आते हैं, लिफ्ट बंद कर देते हैं, कैमरे बंद कर देते हैं। मैंने फौरन पूछा, मरियम वकास? रशीद ने नजरें झुका ली। जिसको भी गवाह बनाते हैं वो अगली शादी का हिस्सा बन जाता है। दूल्हा कौन होता है? रशीद ने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर आहिस्ता से कहा, जो सच के करीब पहुंच जाए।
मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अदील ने फौरन पूरा बेसमेंट सील कर दिया, लेकिन असल झटका अभी बाकी था। इसी रात हमारे पास एक और खबर आई। इस बिल्डिंग की लिफ्ट कंपनी ने बताया, गुज़श्ता 2 महीनों में लिफ्ट के सिस्टम ने रात 11:25 से 11:40 के दरमियान कई बार मैनुअल ओवरराइड होता है, यानी कोई अंदर से कंट्रोल ले रहा था, और वो कंट्रोल रूम बिल्डिंग की छत पर था। हम फौरन ऊपर गए। कंट्रोल रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था, लेकिन मॉनिटर ऑन था। स्क्रीन पर सिर्फ एक कैमरा चल रहा था, फ्लैट 704 के अंदर का, और स्क्रीन पर मैं खड़ा था। वही लम्हा जब मैं पहली बार अकेला गया था, लेकिन वीडियो में एक फ़र्क था। मेरे पीछे वाज़े तौर पर एक शख्स खड़ा था, सफ़ेद लिबास में। चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, और इसके हाथ में नमक का थैला था। इंस्पेक्टर अदील ने धीमी आवाज़ में कहा, ये क्लिट है, और ये लोग खेल नहीं रहे। इसी लम्हे मॉनिटर खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया, और दरवाज़ा जो हमने तोड़ा था आहिस्ता से दोबारा बंद होने लगा। किस्त नंबर 6। काजी। कंट्रोल रूम का दरवाज़ा हमारे पीछे आहिस्ता से बंद हुआ था, लेकिन जब लाइट वापस आई तो दरवाज़ा वैसा ही टूटा हुआ था, यानी वो हिला भी था या नहीं कोई यकीन से नहीं कह सकता था। इंस्पेक्टर अदील ने फौरन पूरी बिल्डिंग सील कर दी। लिफ्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिक पैनल, छत, बेसमेंट सब कब्जे में ले लिया गया। लेकिन मसला ये था, किसी भी कैमरे में कोई सफ़ेद लिबास वाला शख्स दाखिल या खारिज होते नज़र नहीं आया। सीसीटीवी के मुताबिक ना कोई ऊपर गया, ना कोई नीचे आया, ना बेसमेंट में दाखिल हुआ। लेकिन रशीद बंधा हुआ मिला, नमक का दायरा मौजूद था, मॉनिटर पर वीडियो चल रही थी। ये सब हुआ कैसे? अदील ने मुझे अलग ले जाकर कहा, या तो ये सब किसी अंदर वाले का काम है, या फिर आप दोनों में से कोई कुछ छुपा रहा है। हम दोनों? आप और वकास, आप दोनों हर बार मौजूद होते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पहली बार मुझे भी शक सा हुआ। क्या मुमकिन है कि वकास? नहीं, मैं इसे जानता था, लेकिन फिर याद आया वही लफ्ज़ जो इसने अस्पताल में कहा था, गवाह। अगले दिन पुलिस ने बिल्डिंग की तमाम फ्लैट्स की लिस्ट निकाली। एक अजीब चीज़ सामने आई। 7वें फ्लोर के 3 फ्लैट्स पिछले 6 माह से कॉर्पोरेट रेंटल के नाम पर रजिस्टर थे। किराया अदा हो रहा था, लेकिन रहायशों का कोई मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं था। नाम थे CNIC कॉपी नहीं, मगर फ़ोन नंबर आर्जी। अदील ने फ़ौरन छापा मारने का फैसला किया। रात 10:40, 3 टीमें तैयार। मैंने जाने की ज़िद की। अदील ने पहले मना किया, फिर मान गया। अगर ये तुम्हें दूल्हा समझ रहे हैं तो शायद आज वो सामने आएंगे। 10:58 हम 7वें फ्लोर पर पहुंचे। 704 के साथ वाला फ्लैट 703 पहले चेक किया गया। दरवाज़ा खोला गया, अंदर मुकम्मल खाली, लेकिन फर्श पर बारीक नमक की तह, जैसे किसी ने जानबूझकर फैलाया हो। 705 खोला गया। वहाँ पर एक कमरा फर्निश था, सिर्फ एक चीज़ नुमाया थी, दीवार पर कैलेंडर। हर महीने की 11 तारीख सुर्ख मार्कर से घेरी हुई, और हर 11 तारीख के नीचे लिखा था निकाह। मेरे गले में खुश्की उतर आई। मरियम की मौत की तारीख 11, वकास की गुमशुदगी 11। मैंने अदील को देखा, वो भी समझ चुका था। इसी लम्हे 704 के अंदर से आवाज़ आई, पानी गिरने की। हम सब दौड़े, दरवाज़ा खोला गया। हाल के दरमियान इस बार नमक का बड़ा दायरा मुकम्मल बना हुआ था। दरमियान में कुर्सी, और कुर्सी पर वकास बैठा हुआ, होश में मगर आंखें खाली। हाथ बंधे नहीं थे, वो खुद बैठा था। मैं चीखा, वकास! इसने आहिस्ता से सर हट उठाया। तुम देर से आए। ये सब क्या है? कौन है ये लोग? इसके होंठ खुश्क थे। हमें मुंतखब किया गया था। अदील ने फौरन इसे पकड़ा। किसने? वकास की नज़र मेरे चेहरे पर जम गई। काजी। कौन काजी? नाम बताओ। वो हल्का सा मुस्कुराया, पहली बार। एक अजीब गैर फितरी मुस्कुराहट। जो नकाब पढ़ाता है वो सामने नहीं आता। अचानक लाइट्स चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। पुलिस की टॉर्च ऑन हुई।
لیکن نمک کا دائرہ جیسے ابھی ابھی کسی نے مکمل کیا ہو۔ وقاص نے اچانک زور سے کہا، قبول ہے۔ پورے فلور میں آواز گونج گئی۔ اسی لمحے اس کے ناک سے خون کی باریک لکیر بہنے لگی۔ وہ کرسی سے نیچے گر گیا۔ ہم نے فوراً اسے سنبھالا۔ نبض تھی مگر بہت تیز۔ عدیل نے چلا کر کہا، کنٹرول روم چیک کرو۔ ٹیم اوپر گئی۔ کنٹرول روم خالی، لیکن اس بار ایک چیز ملی، میز پر ایک فائل۔ اس کے اوپر لکھا تھا، اگلا دولہا۔ فائل مکمل۔ عدیل نے فائل کھولی۔ پہلا صفحہ میری تصویر، دوسرا صفحہ میری مکمل پروفائل، کام، روٹین، گھر کا پتہ۔ تیسرا صفحہ ایک خالی کاغذ جس پر اوپر صرف لکھا تھا 11:30۔ نیچے جگہ خالی تھی، جیسے دستخط کا انتظار ہو۔ میرا سانس رک گیا۔ یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ عدیل نے سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں، ہم انہیں دیکھنے والے ہیں۔ اسی لمحے میرے موبائل پر آخری میسج آیا، قاضی ناراض ہے، نکاح ادھورا رہ گیا، اب کی بار گواہ نہیں بچیں گے۔ میں نے وقت دیکھا، 11:32، یعنی آج کی شادی ناکام ہو چکی تھی، اور اگر رشید کی بات سچ تھی تو ہر ناکام نکاح کے بعد قاضی خود سامنے آتا ہے۔